اور یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ اوصاف، یہ فضائل، یہ محامد، یہ مناقب، یہ محاسن کس بنیاد پر امام احمد رضا کو عطا ہوئے؟ علماء کہتے ہیں ان کے پاس تھا ایک عظیم دولت تھی. وہ دولت کیا تھی؟ عشق رسول دولت تھی، وہ محبت رسول کی دولت تھی کہ رسول پاک نے ایسا لگتا ہے کہ براہ راست سارا کچھ عطا کر دیا ہو امام اہل سنت کو. اور میرے مصطفیٰ تو مختار کل ہے ہی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کی عطا سے. حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ حضور کی عظمت یہ ہے، ان کے اختیارات و کمالات کا عالم یہ ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرات یہی ہوا، مدینے سے مصطفیٰ نے اپنے احمد رضا کو اپنی رضا کا جام پلا کر سارا کچھ عطا کر دیا. اپنے زمانے میں تفوق اور اصطلاح اور عظمت و بلندی کی اس بلندی پر، اس مقام پر فائز فرما دیا کہ قسم خدا کی قیامت تک امام احمد رضا کا نام زندہ رہے گا. ان کے نعرے لگتے رہیں گے، ان کی عظمت اور ان کے قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے. آپ سب یاد رکھیں حضرات، وہ دور فتنوں کا دور تھا جس دور میں امام احمد رضا آئے. عشق رسول کیا چیز ہے، اس دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. حضرات یہ اغیار، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا، یہ انگریزی سامراجیت رکھنے والے، یہ اجتماعی قوت رکھنے والے، ان کی فکر یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ایک طاقت بچا رکھی ہے، ان کے پاس ایک پاور ہے جس پاور کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے. اگر تم انہیں مات دینا چاہتے ہو، اگر تم انہیں شکست خوردہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم ان پر فاتح بننا چاہتے ہو، غالب آنا چاہتے ہو، تو ایک ہی صورت ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب آپ اندازہ لگائیں حالات کیسے رہے ہوں گے، کیسے ناموافق حالات ہے. روح محمد بدن سے نکالے جانے کی کوشش جاری ہے. ایسے میں بریلی کا تاجدار روح محمد اپنے سینے میں بسا کر دنیا کو کہتا ہے، جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز فدو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا. روح محمد نکالے جانے کی بات، نکال کر پھینکنے کی بات کی جا رہی ہے. میرا امام کہتے ہیں نہیں، جان ہے اس کے مصطفیٰ، وہ نکالنے کے در پہ ہے. ادھر امام آواز دیتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات یہ امام احمد رضا کا عشق رسول تھا. اس زمانے میں آئے جس زمانے میں روح محبت دلوں سے نکالے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایسے میں بریلی میں رہنے والا، بریلی کا کلندر بریلی میں رہ کر زمانے کو پیغام دیتا ہے، زمانے کو پیغام دیتا ہے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضرات مطلب یہ ہے کہ بریلی کا امام رہتا بریلی میں ضرور تھا. وجود جسم آپ یہاں دیکھتے تھے، لیکن ان کا دل مدینے میں ہوا کرتا تھا، ان کی روح مدینے میں ہوا کرتی تھی، ان کی فکر مدینے میں ہوا کرتی تھی، ان کی ذہنیت مدینے میں ہوا کرتی تھی. وہ حضور کی سنہری چالیوں کو دیکھتے رہا کرتے تھے. ایک واقعہ میں کسی زمانے میں پڑھا تھا، ایک روایت حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا تھا، حضرات لیٹا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کے قریب آ کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. حضرات میں سمجھا اعلیٰ حضرت یہاں کیسے آ گئے، دوبارہ پھر وہی دیکھا، سے بارہ پھر وہی دیکھا. حضرات کیا مطلب ہے، وہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ان ایام میں امام احمد رضا کو وہاں دیکھا جا رہا ہے جن ایام میں امام احمد رضا بریلی میں ہوا کرتے تھے، آپ کے شہر میں ہوا کرتے تھے. حضرات یہ امام اہل سنت کا عشق تھا. حضرات بچپن کے زمانے میں امام احمد رضا جیومیٹری کا کوئی مسئلہ حل کر رہے تھے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، بیٹا ابھی اس کے چکر میں مت پڑو، سنو تم قرآن و حدیث اور فقہ سیکھنے میں لگے رہو، اس کی طرف توجہ کرو. یہ سارے علوم جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں، جو سائنسی علوم ہوتے ہیں، جو جدید علوم کہلاتے ہیں، یہ سب کے ساتھ بارگاہ
मुस्तफा से तुम्हें अता कर दिए जाएंगे, ताजदारे कायनात तुम्हें अता फरमा देंगे। हाल यही हुआ। इमाम अहमद रज़ा कहीं नहीं गए प्यारे, कई चंद उलमा की बारगाह में आपने जानवे अदब तय किया, लेकिन रब ने आपको वक्त का इमाम, बल्कि आप अपने वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा थे, सानिया इमाम आज़म थे। और आप सब जानते हैं इसका इतराफ मौलाना कौसर नियाज़ी जो एक दानिश्वर गुजरा है उसने भी किया था और कहा था अपने एक मकाले में, वो लिखते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो अपने जमाने के सानिया इमाम आज़म थे, अपने जमाने के अबू हनीफा थे। और वो आगे लिखते हैं कि फिक्र में दो किताबें बहुत मुस्तनद है, एक फतवा आलमगीरी और दूसरी किताब फतवा रज़विया है। लेकिन लोगों याद रखना, फतवा आलमगीरी 40 उलमा की मेहनतों का नतीजा है और फतवा रज़विया तन्हा इमाम अहमद रज़ा की मेहनत का नतीजा है, इमाम अहले सुन्नत की काबिज का नतीजा है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान है, उनकी अजमत है, ये उनका मकाम है, ये उस बुलंदी पर फाइज है। हज़रात के तन्हा वो काम करके दिखा रहे हैं। अच्छा, आज एक एतराज होता है, आप सब बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हज़रात याद रखे, आज हर तरफ से फितने दरवाजों पर दस्तक दे चुके हैं। आप सब जानते हैं इल्हाद का फितना, अभी चंद दिनों पहले की बात मर्द कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उनके खानदान में उनका एक भतीजा मुल्हिद हो गया, एथीस्ट हो गया, बेदीन हो गया, खुदा बेजार हो गया। याद रखे लोगों, तरबियत में कहीं न कहीं कमी है। मैं तो कहना चाहता हूँ जितने बूढ़े बुजुर्ग नौजवान हैं, जिनके बच्चे हैं, लोगों तुम्हें भी आला हज़रत ने मायूस नहीं किया है। औलाद की तरबियत कैसे की जाए कि औलाद खुदा और रसूल का वफादार रहे, उसके लिए इमाम अहमद रज़ा ने तुम्हें मसलतुल इरशाद जैसी किताब अता फरमाई है। औलाद के हुकूक तुम्हें बताए हैं, तुम मसलतुल इरशाद पढ़ोगे तो तुम्हें औलाद की तरबियत का सलीका आ जाएगा। कभी पढ़कर तो देखो, इमाम अहमद रज़ा का मुताला करके तो देखो। आज प्यारे तरबियत ही का तो नतीजा था कि इमाम अहमद रज़ा इस मकाम पर पहुंचे। आज खुदा एथीस्ट क्या मतलब, मुल्हिद क्या मतलब, दहरिया क्या मतलब, खुदा के वजूद का मुनकिर, ला दीन, किसी दीन को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता। लेकिन जरा देखो, मेरे इमाम के बचपन का जमाना है। एक बात यहाँ सिमरन याद आ गई, अर्ज कर दूं हज़रात, अकीदे तौहीद देखें इमाम अहमद रज़ा का बचपन का जमाना है, रोजे के अय्याम है, रमजान का महीना है, आपने रोजा रख लिया, अभी रोजा फर्ज नहीं हुआ है। हज़रात इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने जब दोपहर का वक्त हुआ, ऐन दोपहर का वक्त, रोजा तो फर्ज नहीं है, एक बंद कमरे में इमाम अहमद रज़ा को आप ले गए। ले जाने के बाद फरमाया, बेटा ये सामान रखे हुए है, तुम खा लो, बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा के वजूद का कायल देखो, अकीदे तौहीद देखो और तरबियत देखो। हज़रत इमामुल मुतकल्लिमीन ने कहा था, कोई नहीं देख रहा है, मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे वालिद, मेरा खुदा तो देख रहा है, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है, रब्बे जुल जलाल तो देख रहा है। क्या समझ में आया? ये इमाम फरमाते हैं, अकीदे तौहीद बता रहे हैं। अब जरा देखें, औलाद इस तरह दीनदार हो तो हाल क्या होता है। इमाम अहले सुन्नत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन की आंखें अश्कबार हो गई, बरसना शुरू कर दी, छम छम बरसने लगी, खुशी के आंसू बहाने लगे। अल्लाह अकबर, ये तरबियत की जाती है। लेकिन आज हमें कोई फिक्र है हमारी औलाद किस तरफ जा रही है? आज सोशल मीडिया ने और तबाह कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, ऐसे दौर में अपनी औलाद पर सही नजर रखो और मशरतुल इरशाद आला हजरत का जो रिसाला है उसे पढ़ो, उसके मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करो, ताकि तुम्हारी औलाद का दीन महफूज रहे, ईमान महफूज रहे, अकीदा महफूज रहे। आज भी हर तरफ से यलगारी हमले हो रहे हैं, दुश्मन आपके दीन ईमान को बस वही ख्वाब जो एक जमाना पहले उसने देखा था, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देखे, फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देखे, फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। आज हाल यही हुआ है कि हिजाज़ो यमन में बज़ाहिर मुसलमान तो है, हज़रात वो मेरे मुस्तफा की नगरी है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं, हकीकत यह है कि कसम खुदा की आज वहां पर नाम ईमान है, इस्लाम है, रूहे मोहम्मद उन्होंने अपने दिलों से निकाल दिया है। यही वजह है कि आज तो 2.5-3 साल से मुसलसल मसालिम उठाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन में बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, बम बारूद और राइफल की वजह से, नए नए हथियारों से बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब क्या है? खामोश है, उसकी आवाज दबी हुई है, उनके यहाँ ईमानी जुर्रत नहीं है, ईमानी गैरत नहीं है, हुर्रियत नहीं है। याद रखें, ईमानी जुर्रत उसी वक्त पैदा होगी, ईमानी गैरत और ईमान की रूह उसी वक्त पैदा होगी जब सीना में
मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा, इसके रसूल का चिराग रोशन होगा। लेकिन हाल यह है कि लोगों उन्होंने अपने दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाल दिया, इसके रसूल को उन लोगों ने अपने दिलों से निकाल कर फेंक दिया, और नतीजतन आज क्या हो रहा है, वो रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और हम भी रुस्वा और जलील हो रहे हैं। इसलिए कि मदाहनत के नाम पर, हिकमत के नाम पर, मसाहलत के नाम पर आज हम बुज़दरी के पैकर बन गए हैं। याद रखें लोगों, तारीख पढ़ के देखो तो आपको समझ में आएगा। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम से लेकर सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत सुल्तान टेपू तक, और आप तारीख पढ़कर देखें तो इन बुजुर्गों से लेकर इमाम आजम से लेकर इमाम अहमद रज़ा तक का हाल यह है। बज़ाहिर कभी कभी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, हज़रात गैर गालिब आए हैं, लेकिन प्यारे ये जो मगलूब हुए हैं जिस्मानी तौर पर हुए हैं, ये मफ्तूह हुए हैं जिस्मानी तौर पर हुए हैं, फिर इन्होंने इसके रसूल की बुनियाद पर उठ करके इस्लाम का नक्कारा बजाया है, हक़ानियत की सदाएं बुलंद की है, एलाए कलमे हक़ की आवाज लगाया है। हज़रात याद रखें वो बज़ाहिर मफ्तूह और मगलूब हुए हैं, लेकिन उनका जिस्म तो मफ्तूह हुआ है, उनका जिस्म मगलूब हुआ है, उनका दीन मगलूब नहीं हुआ, उनकी रूह मगलूब नहीं हुई है, उनका ईमान मगलूब और मफ्तूह नहीं हुआ है। हर दौर में वो नाजुक हालात में उठते रहे और अदियार का मुकाबला करते रहे और दीन की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करते रहे। हज़रात इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे अकीदे तौहीद की भी हिफाजत फरमाई, अकीदे रिसालत की भी हिफाजत फरमाई, और हाल यह है अज़मत सहाबा पर भी उन्होंने पहरा दिया। हज़रात अज़मत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत का तो यह हाल था कि इमाम अहले सुन्नत पर शिया होने का भी इल्जाम लगाया गया। उसके जवाब में किताब लिखी गई इमाम अहमद रज़ा हक़ाइक़ के उछाले में। मैं आपको बता दूं ये शिया होने का इल्जाम लगाया गया था कि इनके यहाँ रज़ा अली, नकी अली, रज़ा अली, इस तरह के नामों का एक सिलसिला जारी है। लेकिन प्यारे हुब्बे रसूल और मोहब्बत सहाबा का जाम इमाम अहमद रज़ा ने खुद भी पिया था और लोगों को भी पिलाया था, और दुनिया के सामने ये साबित किया कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, हुब्बे अहले बैत की बुनियाद पर हमारे नाम इस तरह जरूर रखे हुए हैं, लेकिन हमारा अकीदा वही है कि इस रुए ज़मीन पर नबी और रसूलों के बाद अफज़लुल बशर बादल अंबिया की तहकीक अगर सबसे अफजल कोई है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ात है। मैं आपको बता दूं उस जमाने में प्यारे हज़रत